Hello students, myself Rakesh Misra. Now I am going to talk about the human circulatory system, that is by means of transport system. As you all know, in previous video lecture you have seen the transport system in various living beings. That is very interesting. But keep in mind, in our syllabus broadly about transport system of human being are actually given, that need to describe one by one what is the components and what are the structure and what are its function. So without delay timing, let back in online class and discuss each and every topic related to human circulatory system or human transport system. What we are going to discuss and what will be the communication between me and other students related to the topic transport system of human being, it all explained, it all will be cleared in upcoming few moments too. So be with the video lecture till the end to see what I am discussing with the students related to the topic human transport system or human circulatory system. Here we are going to discuss about the transport system of human being, that is also known as circulatory system of human being. Keep in mind, why circulatory system? Because of having the liquid material blood. Blood circulates from one part of the body to another part. That's why there is a circulatory system. Only human circulatory system is so on, not a plant. Plant transport system is only transport system. Animals transport system, basically in case of human being, is circulatory system or human circulatory system. Let I input the heading. So your heading will be, first of all you need to write something about the transport system of human being, as I have told you. Now next one is components of circulatory system in human being or components of human circulatory system. Keep in mind. So let I label point 1, the heart. Heart. As I have told you, here don't think about the circulatory system. Here keep in mind, here think about the plumbing in our body. Means there is a need of water supply, as like the need of water supply in your home. From one part of the home to another part, there is a need of motor pump. What actually done by motor pump? Motor pump pulls the water from ground and flow into the tank. Motor pump actually pulls the water from ground and flow and fill inside the tank. Is it clear? बातें clear हुई? Very good, Pragati. Very good. Listen. Similarly, in your body, there is a pumping machine. There is a motor pump. That motor pump is heart. So heart acts as motor pump. Keep in mind. Don't be confused regarding the motor pump. That may be the pumping machine. Pumping machine. Pumping machine. That pumping machine pulls the blood, not water. Pulls the blood as like the motor pump from one part of the body to another part. Now the second thing. Listen carefully. Apart from motor pump, what do you want to buy from market? What is the next requirement? मोटर पंप तो आप खरीद लिया, घर में प्लम्बिंग करवाना है, ठीक है, घर में आपको पानी की सप्लाई देना है, टंकी में भरना है, आप पहले मोटर खरीद के लाएंगे, फिर उसके बाद किस चीज को? पाइप की। वेरी गुड। अगर पाइप नहीं रहेगा तो नीचे से ऐसे फुहारा मार के टंकी में थोड़ा भर पाएंगे। हमको टॉप फ्लोर पे पहुंचाना है और 4 फ्लोर का मकान है, कैसे भरेंगे भाई? इतना अर्जुन की तरह से निशाना थोड़ा नहीं कि हम सीधे ड्रॉप बाई उसमें गिरवाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हमको पाइप का कनेक्शन चाहिए होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, हमारे बॉडी में पाइप को क्या बोलते हैं? वेसल बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? वेसल, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या है? वेसल्स दैट एक्ट एज द पाइप, that act as the pipe. So I hope what is vessel, what are the function of vessel, that is clear. If I put the pipe along with motor, that will be the function same as pipe at your home. It means pipe का काम क्या होता है? किसी लिक्विड मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सप्लाई करता है। सेम थिंग हमारे बॉडी में जो वेसल्स है वो पाइप का काम करता है। वो कौन कौन से पाइप है? आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ध्यान देना है। आर्टरी, वेन, कैपिलरी, हमारे बॉडी में 3 तरह के पाइप है। तीनों का अलग अलग काम है, हम नेक्स्ट में समझा देंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? 2 चीजें क्लियर हो गई। मोटर क्या है हमारे बॉडी में? मोटर पंप, हार्ट है,
और पाइप क्या है, वेसल्स है। दोनों बातें क्लियर हो गई? हो तो बताओ भाई। चलो प्रगति वर्मा, बाकी लोग, चलो अंशिका राय, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, दो चीजों की व्यवस्था हो गई, तीसरी चीज के बारे में सोच रहे हो क्या? तीसरी चीज के बारे में आप सोच रहे हो? ब्लड। हाँ वेरी गुड। देखो अगर हमारा मोटर पानी ही ना दे, ग्राउंड हम करवा दिए, पानी लगा दिए, पानी, तो क्या होगा? मोटर जल जाएगा। पाइप और टंकी की बात ही छोड़ो, मोटर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी में तो ब्लड होता है, हमारे घर में क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, वाटर की सप्लाई देनी होती है। ठीक है, दैट इज एक्चुअली सर्कुलेटरी मीडियम। सो थर्ड रिक्वायरमेंट इज सर्कुलेटरी medium. Circulatory medium may be blood. Circulatory medium may be blood or may be the lymph. Listen carefully. Not only blood is a liquid material in our body. There is another type of liquid material from the separate channel. It means whether blood flow, the lymph cannot flow. Lymph form the separate channel, separate pipe, but the pumping machine are same, that is heart. So lymph form another system and blood form another. The system of circulation that formed by the blood is known as blood circulatory system. Blood circulatory system. And system of lymph, system of circulation that made through lymph is known as lymphatic system. Lymphatic system. It is clear? It is clear to everyone? वेरी गुड। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते बेटा? ठीक है सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ इन आवर बॉडी? सब क्लियर हो जाएगा सूरज प्रजापति, घबराना नहीं है। अभी तक जो मैंने लेक्चर दिया है उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, सब लोग पेन लेकर के रेडी होना। मैं क्वेश्चन दोहराऊंगा नहीं, बस आइडिया लिख लेना, बेसिक आइडिया। ठीक है कि ये जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछता है। देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसको लेकर के पूछेगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। एनसीईआरटी में ये आप देखेंगे पहला ही क्वेश्चन है, तो लिखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द हार्ट as a motor pump or pumping machine, vessels as a pipe that supply the blood, and circulatory system may be blood or lymph. ये बातें क्लियर हो गई? पहला पॉइंट क्लियर हो गया, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा नेम द पार्ट्स ऑफ बॉडी, नेम द पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट एक्ट एज पंपिंग मशीन एंड हेल्प टू फ्लो द ब्लड। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हार्ट। क्या हो जाएगा? हार्ट। ठीक है, फिर एग्जाम में पूछेगा व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स इन आवर बॉडी। आंसर क्या हो जाएगा? आर्टरी, वेन, कैपिलरी। अब ये इसका डिटेल हम जब डिटेल पढ़ाएंगे तो समझा देंगे, पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या पूछेगी? व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी मीडियम फ्लो इन आवर बॉडी। लिखेंगे ब्लड फॉर्म ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड लिम्फ दैट फॉर्म लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर है ना? ब्लड के बारे में सब लोग जानते हो, 9th में मैंने ही पढ़ाया था। इट इज लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यूज। इट मींस मैनी सेल्स आर फ्लो एज लिक्विड फॉर्म, एज लिक्विड। ठीक है, बहुत सारे सेल्स जो है इसमें फ्लो होते रहते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यूज। क्योंकि ढेर सारे सेल्स जब मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, जब वो फ्लो करेगा तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो बोलेंगे लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यूज। ठीक है, लिम्फेटिक क्या होता है? एक लाइन में अगर हम डिफिनीशन लिखे लिम्फेटिक का, लिम्फ का डिफिनीशन, तो क्या लिखेंगे? बॉडी फ्लूइड अदर देन ब्लड कॉल्ड लिम्फ। बॉडी फ्लूइड अदर देन ब्लड, बॉडी फ्लूइड अदर देन ब्लड कॉल्ड लिम्फ। हो गया हो तो बेटा बता दो जल्दी, टाइम नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हम आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे। लिखो कॉपी में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। पहले पॉइंट्स पे आ जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसको मैं मिटा रहा हूं, तब मिटा दूं ना, एरेज कर दूं इसको। चलो
आते नेक्स्ट, लिखो कॉपी में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट लिखिए सब लोग, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो जाए तो बताना भाई। वेरी गुड। अब सब लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि हार्ट का डायग्राम बनाना आसान नहीं है, इसलिए हार्ट का डायग्राम सब लोग मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है। चलो आते हैं, आर यू रेडी? सब लोग रेडी हो? मैं सिखा रहा हूं हार्ट का डायग्राम बनाना। चलो चलो, सबसे पहले आप मेन पेज सेलेक्ट करना, उस पर कुछ लिखा ना हो, फ्रेश पेज, बीचों बीच बनाए ये वाला डायग्राम। ऐसे एक डायग्राम बनाए भाई, हो जाए तो बताना। इस तरह का डायग्राम होना चाहिए, बस जैसे मैं बनाया हूं वैसे बनाए। ये सीधी लाइन में सीधी लाइन खड़ा हूं और ये हल्का सा टेढ़ा झुका हुआ, जैसे झुका हुआ आम। हो जाए तो बताना। वेरी गुड। बेंट मैंगो की तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, इसके मिड में एक लाइन ऐसे खींचो, एकदम बीचों बीच, ना उधर ना ज्यादा इधर, और ये लाइन एकदम टच ना करे, थोड़ा सा गैप पे रहे यहां पे। हो जाए तो बताना। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे नीचे ले जाते हैं, ऊपर के साइड में नीचे ले जाएंगे, और जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे ये पतला करते जाएंगे, और ऊपर ले आकर के एकदम पतला कर देंगे, ठीक है। और एक डॉट यहाँ पे करेंगे, और ऐसे ही एक लाइन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसको पतला करते जाएंगे, जितना ऊपर ले जाएंगे पतला करते जाएंगे, ठीक है। और इस लाइन को भी वही हाल कर देंगे, ध्यान देना है। इधर से एक लाइन खींचेंगे, इसको भी जितना ऊपर ले जाएंगे पतला करते जाएंगे, ठीक है। यानी ये वाली लाइन पतली रहेगी, और जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे ये मोटी होती जाएगी, ये सब मोटी होती जाएगी, ठीक है। ये सब मोटी होती जाएगी, और जैसे से ऊपर जाएंगे पतला होता जाएगा, ये सब पतला होता जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है ये? हैंड रेज करके बताओ भाई। चलो ठीक है, बनाते रहो। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या करो, एक लाइन ऐसे खींचो पैरेलल, इसके यहां ले जाओ, और एक लाइन यहां खींचो, इसकी यहां पैरेलल लेके आओ, ये पॉइंट पे ले आके खत्म करो, थोड़ा थोड़ा ऊपर छोड़ करके। हो जाए तो बताना। वेरी गुड। चलो अब इसको हल्का सा टर्न करके ऐसे इसमें मिला देते हैं, और इसको हॉलो स्ट्रक्चर ऐसे दे देते हैं, जैसे लगता है ये हॉलो स्ट्रक्चर हो, पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो। हो जाए तो बताना भाई। वेरी गुड। चलो आते हैं नेक्स्ट। अब इसको क्या करना, ऊपर की तरफ ले जा करके नीचे यहाँ पे टच करा देना, जैसे मैं ले गया हूं। हो जाए तो बताना। वेरी गुड। चलो अब क्या करना है, इसको ऐसे ऊपर ले जाना है, लिसन, ऊपर ले आकर के थोड़ा सा जगह छोड़ करके फिर ऐसे खींचना है, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ करके ऐसे खींचते रहना है, ठीक है। और एक बार नीचे ले आकर के इसको इसमें मिला देना है। हो जाए तो बताना भाई। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब ये जो मैंने छोड़ा हुआ गैप, ये दोनों गैप को मिला करके थोड़ा थोड़ा पाइप वाला स्ट्रक्चर जंक्शन ऐसे लगा देते हैं। हो जाए तो बताना भाई। चलो वेरी गुड। ये पाइप जहां पे ये टच है, इसको इसी के पैरेलल मान के चलो कि ये पाइप पीछे के साइड आ रहा है, और यही बाहर यहां पे निकल रहा है। इसको भी बना लो जल्दी।
हो जाए तो बताना। चलो नेक्स्ट, अब क्या करना है, ये जो लाइन है इस लाइन को उधर मिला दो और एक लाइन ऐसे लेके आओ और ऐसे वी शेप स्ट्रक्चर दे दो और फिर इसको यहाँ पे लैग मिला दो, इसको वी शेप स्ट्रक्चर बिल्कुल दे दो, ऐसे वी शेप स्ट्रक्चर। हो जाए तो बताना। हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब ये वाली लाइन जो गई है इसी को सपोज दैट ये गया है, इसको मैं आगे बढ़ा दिया। ये वाली लाइन जो गई है सपोज दैट यहाँ पे मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये पीछे से लाइन आ रही है, ध्यान देना, ये वाली लाइन है। हो जाए तो बताना। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब ये जो वाली लाइन दिख रही है, ये वाली, इस लाइन को अच्छे से देखो। ये जो लाइन बनाया था इस लाइन को इधर लेके जाओ और वी शेप स्ट्रक्चर ले जाकर के उधर लेके चले जाओ, ठीक है। ये निकल गया इधर और ये निकल गया इधर, बना लो जल्दी। हो गया कि नहीं? चलो नेक्स्ट आते हैं। इसको ले आकर के नीचे लेके आओ, ऐसे फोल्ड करो नीचे और यहां से निकाल दो, ध्यान दो। और ये वाला पॉइंट ऐसे कर दो और यहां से इसको नीचे कर दो। हो जाए तो बताना। हो गया? प्रगति वर्मा हैंड डाउन कर लो भाई। वेरी गुड। चलो, दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट। This is the diagram of heart. If you have drawn the diagram, then our next step is to label the structure of each and every points of heart.